Hello everyone, welcome to our channel Sai School. So today we are going to start with a new chapter of classes, that is chapter number 1 of history. What, where, how and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. So let's start with the chapter. I'll read the paragraph and then I'll make you understand that paragraph in Hindi. Okay? Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो रशीदा का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लड़की बनी हुई है, रशीदा इस लड़की का नाम है. इसका क्वेश्चन है कि रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी. सबसे पहले उसने न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखी, 100 years ago, मतलब कि 100 साल पहले. How she wondered could have anyone know what had happened so many years ago. तो उसको लगा कि किसी को कैसे पता होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था. Finding out what happened. अब हम जानते हैं कि हुआ क्या था. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. कल तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, तुमने रेडियो भी सुना होगा, टीवी भी देखा होगा, तो तुमको याद है कि कल क्या हुआ. पिछले साल का तुम्हें कुछ याद होगा, लेकिन पूरी तरह याद नहीं होगा. But what about long ago? लेकिन बहुत पहले की बातें क्या तुम्हें याद है? What can we know about the past? हम past के बारे में क्या जान सकते हैं? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट से, कि कैसा खाना वो लोग खाते थे, कैसे लोग रहते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे, ठीक है, क्या वो करते थे, कैसे वो हंटिंग करते थे, कैसे वो फार्मिंग करते थे, और कैसे कुछ आर्टिस्ट जो है, आर्टिशियंस जो होते थे. तो ये चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चे कैसे खेलते थे, कैसे खेल वो खेलते थे, कैसे स्टोरीज वो सुनते थे, कैसे प्लेस नाटक वो देखते थे, और किस तरह के गाने वो गाते थे. Where did people live? जो लोग हैं वो रहते कहाँ पर थे? Find the Narmada River on map 1. तो यहाँ पर मैप 1 दिया गया है आपका. ओके, ये आपका मैप 1 है. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नर्मदा रिवर को फाइंड करना है. तो ये देखिए, ये आपकी नर्मदा रिवर है. ओके, देखते हैं इसके बारे में क्या बताया है. People have lived along the banks of this river for several hundred years ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew what about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो यहाँ पर जो नर्मदा का जो रिवर है, उसके बैंक पर, बैंक मतलब कि किनारा, उसके बैंक पर उस टाइम पर लोग कम से कम 1000 साल पहले लोग रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. कुछ जो लोग थे जो रहते थे वो gatherers थे, मतलब कि जो अपना फूड इकट्ठा करते थे. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding. उनको पता था कि जो भी प्लांट्स हैं उनसे उनको बहुत फायदा होने वाला है. And collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो वो लोग तब एनिमल्स को भी हंट करते थे, मतलब कि वो लोग एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest.
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब देखते हैं सुलेमान और किरथाल हिल्स जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। ये देखिए यहाँ पर आपके सुलेमान हिल्स हैं और ये है आपकी किरथाल हिल्स। तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। अब देखिए इनके बारे में क्या बोला गया है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर करीब 8,000 साल पहले लोगों ने, विमेन और मेन ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया। ठीक है, जैसे कि वीट और बार्ली, गेहूं और जौ। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोगों ने sheep, goat और cattle rearing भी शुरू कर दी और वहाँ पर गांव बसाकर रहने लगे। Now locate the Garo hills to the northwest, northeast and the Vindhyas in central India. अब हमें गारो हिल्स देखना है कहाँ पर है और विंध्यास देखना है। Let's come to the map again. Look at this. Here is your Garo Hills and here is your Vindhyas. Okay, this area is of Vindhyas. Now let's come to the chapter again. These were some of the other areas where agriculture developed. तो उस टाइम पर आप करीब 8,000 पहले ये एरियाज भी ऐसे थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। The places where rice were first grown are to the north of the Vindhyas. तो जहाँ पर सबसे पहले राइस, चावल की खेती शुरू की गई वो विंध्यास के नॉर्थ में है। विंध्यास का नॉर्थ मतलब कि आप देख सकते हैं ये वाला विंध्यास से ऊपर वाला एरिया, इसका मतलब विंध्यास का नॉर्थ। नेक्स्ट देखिए, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें देखना है रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज और रिवर इंडस। तो यहाँ पर आप देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। These are 5 rivers. ये 5 rivers हैं जो कि रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये 5 rivers ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? ये 5 rivers ओरिजिनेट होती हैं तिब्बत से। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 5 rivers इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। Now let's come to the chapter again. Tributaries are smaller rivers that flows into a larger river. तो tributaries क्या होता है? छोटी rivers जो मिलने के बाद एक बड़ी river बनाती है। तो 5 जो tributaries हैं वो मिलकर एक बड़ी river मतलब कि इंडस को फॉर्म करती है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. करीब 4,700 ईयर्स पहले इन रिवर के बैंक के आसपास सिटीज फ्लरिश हुई। लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स अगो, उसके बाद करीब 2,500 साल पहले cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो अब उसके बाद करीब 2,500 साल पहले सिटीज डेवलप होने लगी कहाँ पर? गंगा के आसपास, गंगा के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। तो ये गंगा वाला एरिया है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. तो पहले क्या था? जो गंगा के साउथ का एरिया है, गंगा के जो साउथ का एरिया है, मतलब कि गंगा से नीचे वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। ठीक है, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब जिसको हम बिहार बोलते हैं वो कुछ पहले एंशिएंट टाइम्स में मगध था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। उसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और बहुत बड़ा किंगडम उन्होंने बनाया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उन्होंने अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में अपने किंगडम्स जो है बना रखे थे। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another.
The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. तो उस टाइम पर जब लोग ट्रैवल करते थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर एक कॉन्टिनेंट के अंदर ही कहीं पर भी जब वो ट्रैवल करते थे, तो जो बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन्स थे, हिमालयास जैसे हो गया, डेजर्ट थे, रिवर्स थे और जो सीज थे, उन्होंने जर्नी को डेंजरस जरूर बनाया, लेकिन जर्नी कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुई. So, men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. तो लोगों ने इधर से उधर जाना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, या तो रहने की तलाश में, या फिर वो कई बार इधर से उधर जाते थे किस लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचने की वजह से. जैसे कभी कहीं पर आकार आ गया तो कभी कहीं पर बाढ़ आ गई, तो लोग इधर से उधर मूव करते रहते थे. समटाइम्स men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. कुछ टाइम पर क्या होता था, men जो थे वो आर्मीज में जाते थे कॉन्करिंग के लिए. ओके, लैंड कॉन्कर करने के लिए आर्मी में जाते थे. Besides, merchants traveled with caravans. जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे बड़े बड़े, वो अपने कैरावान्स और शिप्स के अंदर जाकर के वैल्यूएबल जो गुड्स था, उनका जो सामान था, उसकी ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज और टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. और रिलीजियस टीचर्स जो टीचर्स थे उस टाइम पर, जो प्रीस्ट हुआ करते थे या फिर कोई हमारे पंडित टाइप जिनको हम बोल सकते हैं, वो हुआ करते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. फाइनली some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. फिर लोगों ने नई चीजों की तलाश में इधर उधर जाना शुरू किया, और जब उन्होंने इधर उधर जाना शुरू किया नई चीजों की तलाश में, तो उनके जो आइडियाज थे वो एक दूसरे को शेयर होने लगे. ओके, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो उस टाइम पर क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो लोग थे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग रहते थे, वो भी किसी चीज की तलाश में बाहर गए, और कुछ बाहर के लोगों ने भी यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया. These movements of people enriched our culture and traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of years. तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारा जो कल्चर है और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो एनरिच होने लगे. पीपल हैव शेयर्ड, लोगों को नए नए तरीके पता चले, स्टोन्स पर कार्विंग करने के, म्यूजिक बनाने के, कुकिंग करने के, लोगों को नए नए तरीके पता चलने लगे. ओके, नेम्स ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. जो दो वर्ड हैं जो अपनी कंट्री के लिए हम यूज करते हैं वो है इंडिया और भारत. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया, सिंधु से आया. ठीक है, इंडस, जिसको हम इंडस बोलते हैं, इंडस जो हमारी रिवर है, उससे ये वर्ड हमें इंडिया मिला है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं. Find Iran and Greek in your atlas. अब आपको क्या करना है, आई होप आप सभी के पास एटलस होगी. आपको ईरान और ग्रीस का जो मैप है वो देखना है एटलस में. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. This is important कि उस टाइम पर जो ईरानी और ग्रीक के जो लोग करीबन 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से इंडिया आए थे, उनको पता था इस रिवर के बारे में. ठीक है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ
इंडिया, उनको पता था कि यहाँ पर एक रिवर है इंडस, या उसको वो हिंडोस भी बोलते थे और इंडोस भी बोलते थे, और उनको ये भी पता था कि इसके इंडस के जो ईस्ट में जो लैंड है वो लैंड जो है वो इंडिया है। द नेम भारत was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in ऋग्वेदा। उस समय पर भारत जो वर्ड था, जो भारत नाम था, वो सिर्फ उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट मतलब कि आप देख सकते हैं जो इस एरिया में रहते थे, सॉरी, इस एरिया में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता था। ओके, उस समय पर। अब देखते हैं नेक्स्ट, द नेम हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जिनका हमने पढ़ा है जिनको ऋग्वेदा में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है, और इसमें जो लोग मेंशन थे उन्हीं को भारत का हिस्सा माना जाता था। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और उसके बाद जो भारत वर्ड है वो पूरी कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, there are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. These were usually written on palm leaf. तो अब हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चला, आइए जानते हैं। There are several ways of finding out about the past. बहुत सारे वेज हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के तरीके हैं। One is to search for and read books that was written long ago. एक तरीका है वो बुक्स पढ़ने का जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं। These are called manuscripts. इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं manuscripts because they were written by hand. Manuscripts मतलब जो मैनुअली रिटन हो, वो स्क्रिप्ट जो मैनुअली रिटन हो। मैनुअली मतलब by hand. ओके, इसलिए हमने इनको कहा manuscripts। और इनको किस पर लिखा गया? They were usually written on palm leaf. इनको पाम के लीफ पर लिखा गया, और on the specially prepared bark of tree, या फिर इनको ट्री का जो बार्क होता है उस पर लिखा गया था, known as the birch, जिसको हम birch बोलते हैं, which grows in the Himalayas. ये हिमालयाज में उगता है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many had survived, often preserved in temples and monasteries. जब इतने साल बीत गए तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट तो इंसेक्ट्स ने खा ली, कुछ वैसे ही मतलब खराब हो गई, और कुछ जो है रखी हुई है, मतलब कि कुछ सरवाइव कर गई। Often preserved in temples में रखी हुई है, monasteries में रखी हुई है। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit language and Tamil. तो कुछ बुक्स इनमें से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डेल करती है, मतलब कि हर बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि कोई बुक हमारे रिलीजियस बिलीफ के लिए है, कोई बुक प्रैक्टिसेस के लिए है, कोई हमारे जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी लाइफ के बारे में बताती है, कोई हमारी मेडिसिन से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, और कोई बुक्स है हमारी जिसमें हमने एपिक्स, प्लेज, कोई नाटक है, या फिर कोई पोएम्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पोइट्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी बुक्स रखी हुई हैं। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। उस समय पर जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत चलती थी, तो ज्यादा से ज्यादा बुक्स जो है संस्कृत में लिखी हुई हैं। अदर्स वर इन प्राकृत, और कुछ बुक्स प्राकृत में है। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो उस टाइम पर लोग ऑर्डिनरी पीपल जो लोग यूज करते थे, और कुछ बुक्स तमिल में है। We can also study inscriptions. अभी तो हमें पता चला कि हम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, और उसके बाद है हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। तो अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होता है देखते हैं। These are written on relatively hard surface such as stone or metal. तो ये वो तो हमारे पाम लीफ पर लिखे जाते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट,
लेकिन इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो बहुत साल पहले कभी लोगों ने स्टोन्स के ऊपर क्रिएट किया था, ठीक है, जो लोगों ने कभी स्टोन्स के ऊपर कार्व किया था या फिर बहुत हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा था। Sometimes king got their orders inscribed so that they could see, read and obey them. कुछ पहले ऐसा होता था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब मतलब कि उनको गड़वा देते थे, ठीक है, मतलब लिखवाना मतलब कि वैसे बिल्कुल हार्ड पर लिखवा कर उनको वो रख देते थे, जिससे कि उनको वो बार बार पढ़ सके और उसको वो ओबे कर सके। There are other kinds of inscriptions such as well where men and women including kings and queens recorded what they did. कुछ inscriptions ऐसे हैं जिसमें men और women ने kings या queens ने रिकॉर्ड कर रखा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। For example, kings often kept record of victories in battles. तो जैसे कि कुछ राजा महाराजा क्या करते थे, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनमें जितनी भी उनकी जीत हुई है वो उसको भी इंस्क्राइब करा देते थे। These were many other things that were made and used in the past. तो ये चीजें थी जो there were many other things, इसके अलावा बहुत सी चीजें थी जो यूज हुई। Those who study these objects are called archaeologists. तो जो इन सब चीजों को पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं archaeologists. They study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture. तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, वो जो पुरानी चीजें होती हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ है या फिर उन सब चीजों को पढ़ते हैं, और जो पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उनको वो पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, वो एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सकेवेट भी करते हैं। एक्सकेवेट मतलब कि खुदाई भी करते हैं, ठीक है, कि कोई चीज पुरानी ना मिल जाए। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, पुरानी चीजों को ढूंढने के लिए वो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल। तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स किस चीज के बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन के होते हैं, कुछ क्ले के होते हैं और कुछ मेटल होता है। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो जो चीजें हार्ड से बनी होती हैं, जो खत्म नहीं होती, ऐसे सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉट रखा मिला होगा और यहाँ पर ये इंस्क्राइब्ड हो रखा है कुछ, तो इस तरह से लेफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं। A pot from an old city, pots like these were used about 4700 years ago. तो ये एक पॉट जो है वो करीब ऐसे पॉट्स 4700 years ago यूज हुआ करते थे। यहाँ पर है एक कॉइन, यहाँ पर एक कॉइन है, कॉइन सच एज दीज, यहाँ पर सिल्वर कॉइन है, ठीक है। तो ये चीज कब यूज हुआ करती थी, करीब 2500 साल पहले ये चीज यूज हुआ करती थी। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Archaeologists और किस चीज की खोज करते हैं, वो एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिश की बोन्स की खोज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि पहले के लोग खाते क्या थे। Plant remains survive far more rarely. If seeds of grains or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information. जो लोग पास्ट की स्टडी करते हैं वो वर्ड सोर्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, तो वो लोग वर्ड सोर्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो historians और archaeologists क्या होते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो पुरानी चीजों को यूज करते हैं, सोर्सेज को यूज करते हैं उनकी जो राइटिंग्स है उनको समझने के लिए, उनकी जो लैंग्वेज है उनको समझने के लिए। One past or many? Did you notice the title of this book? Our past? We have used the word past
in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. तो इनका मतलब है क्या पास्ट एक है या फिर बहुत सारे हैं? आपने इस बुक का टाइटल देखा होगा, इसको टाइटल दिया गया है आवर पास्ट, मतलब कि हमारे जो पास्ट है, मतलब यहाँ पर कई सारे पास्ट बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग तरह के लोग उस टाइम पर हुआ करते थे, उनके लिए अलग अलग तरह का पास्ट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जैसे कि कुछ हर्डर्स और फार्मर्स जो होते थे, उनकी लाइफ किंग्स और क्वींस से अलग थी, तो उनका पास्ट अलग होगा, और किंग्स और क्वींस का पास्ट अलग होगा। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट, मर्चेंट्स अलग थे, क्राफ्ट पर्सन का पास्ट अलग होगा, और इसी तरह से सब किसी का पास्ट जो होगा, अलग अलग ग्रुप का पास्ट अलग अलग होगा। ऑल्सो as is true even today, people follow different practices and customs in different parts. तो आज भी जैसे लोग अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीति रिवाज सबके होते हैं, उसी तरह तब भी एंशिएंट टाइम में भी लोगों के अलग अलग रीति रिवाज हुआ करते थे, इसलिए सबका पास्ट अलग अलग है। For example, today most people live in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. जैसे कि अंडमान में आज क्या होता है, लोग अपना जो खाना है फिशिंग या हंटिंग से प्रोड्यूस करते हैं। By contrast, most people living in cities depend on other supplies of food. बल्कि जो लोग सिटीज में रहते हैं वो कुछ और ही सप्लाईज पर डिपेंड करते हैं। Difference such as these existed in the past as well. तो ये जो डिफरेंस है ये पास्ट में भी इसी तरह से था। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their life, there is much that remains unknown. तो किंग्स और क्वींस तो ऐसे लोग थे जो अपनी जो चीजें थी, मतलब जो उन्होंने किया है उसको इंस्क्राइब करवा के रखवा देते थे कि उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है, कौन सी लड़ाई जीती है, वो उसको लिखवा कर मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या फिर इंस्क्रिप्शंस में रख देते थे। लेकिन जो हर्डर्स थे, गैदरर्स थे, हंटर्स थे, फार्मर्स थे, वो ये सब नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ उनके बारे में, हर्डर्स थे और जो फार्मर्स थे उन सब के बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ है वो आर्कियोलॉजी निकाल करके सामने लाती है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें आज भी नहीं पता है। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर इतना रीड किया है, इसका बाकी का पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ओके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। If you like my video, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for our new updates.